Welcome everyone. Thank you for joining us today's webinar. My name is Mayank Shah, Senior Lecturer in Electrical Engineering Department at Parul Polytechnic Institute. Now today we are presenting the webinar on the basics of control panels and PLC presented by the Mr. Manan Patwa sir. He is a founder of Parasmani Switch Technology. They manufacture all the types of control panels and complete automation solutions. They offer the various types of product like the low voltage electrical panels, automation solutions, drive solutions, industrial service. Sir has a more than 7 years of industrial experience in electrical control panel and designing systems. So now just a little reminder to all before we get started, if you have any questions during the presentations, please type them into your question box or you can directly text me. I will bring them up during the presentations and we will also have a time for the question at the end of sessions. So before we go further, I want to review the functionality of today's webinar. Topic is basics of control panel and PLC. Our today webinar will help you to discover useful knowledge and facts about the automation industries that you really need to learn if you desire to know how the automation industry works, what the fundamental systems they are made of, their progress history, categorizations, and the potential guideline for the further developers turn into our live or on-demand industries automation webinar for the conversations about the new technology and how they can make the difference in your everyday manufacturing process. So then welcome to this webinar. You can understand all the basic concepts and techniques associated with the PLC and automations. So now, without further ado, we will turn the time over to the Mr. Manan Patwa sir. I hand over, hold the sessions to the Manan sir. Over to you, sir. Yes, sir. Okay, now start, Hello. sir. Yeah, Am I yeah. audible, sir? Yes, yes, sir. Okay. Good morning, friends. Today we are going to learn about some basic knowledge on the electrical control panel and the basics of programming and how PLC panel and PLC programming works. We have very good topic today. Then let's begin. As per the Mayank sir said, I am the founder of Parasmani Switch Tech. I have 7 years of industrial experience. This is my company logo. We have Parasmani Switch Tech company team. Let's start. Okay. So everyone will know. सबको इतना basic पता होगा कि what is the control panel. Basic is a cabinet which contains an assembly and interconnected of electrical component designed to control and protect the field equipment. The selection of components for control panel is mainly based on the four things: power rating of the field equipment, incoming power supply, explosion proof category, and the application of equipment. अभी इसका बेसिक हम समझे, ये इसका डेफिनेशन हो गया. पर अभी हम बेसिकली देखने जाए तो कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर रहती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीटिंग लोड रहता है और तरह तरह की कोई भी जो इक्विपमेंट होती है उसका पावर हमको ऑन करना है, किसी का ऑफ करना है, मोटर को पर्टिकुलर स्पीड पे घुमाना है, अगर ये कन्वेयर है तो पर्टिकुलर टॉर्क से हमको कन्वेयर चलाना है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी एप्लीकेशन रहती है. तो वो एप्लीकेशन के हिसाब से जो भी हम कंपोनेंट लगाते हैं तो पर्टिकुलर एक वाटर प्रूफ या फिर डस्ट प्रूफ कि उसको एटमॉस्फेयर से नुकसान ना हो उस तरह का कैबिनेट बनाया जाता है. उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट लगाए जाते हैं. तो ये जो इक्विपमेंट लगाते हैं उसका वायरिंग करते हैं और उसको फील्ड के साथ कनेक्ट करते हैं. तो पर्टिकुलर ये जो कैबिनेट है उसको हम कंट्रोल पैनल बोलते हैं. अभी इसका अलग अलग टाइप से उसका रेटिंग रहता है. सपोज मेरी फील्ड की मोटर का रेटिंग रहता है 5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP. तो मेरा जो पैनल के अंदर का जो इक्विपमेंट रहता है जो पर्टिकुलर मोटर को कंट्रोल करता है या फिर प्रोटेक्ट करता है तो उसके हिसाब से उसका पावर रेटिंग और इक्विपमेंट का रेटिंग हम सिलेक्ट करते हैं. देन सपोज मेरा पूरा इंडस्ट्री का लोड है 100 HP है, 100 HP है, 200 HP है, 300 HP है. तो जो भी लोड रहता है उसके हिसाब से
हम जीबी के और से मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है उसके और से हम इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड करते हैं कि नहीं चलो मेरा इंडस्ट्री इतना है तो मुझे इतना लोड का जरूरत है, इतना लोड का डिमांड है मेरा। जैसे ही हम घर का होता है, जैसे घर का हमारा नॉमिनल रहता है 10 HP 15 HP 20 HP सिंगल फेज या थ्री फेज, सेम वे इंडस्ट्री का रहता है। जितना हमारा डिमांड रहता है उसके हिसाब से हमें वो पावर सप्लाई करते हैं, और वो जितना भी पावर सप्लाई करते हैं उसको हम इनकमिंग पावर सप्लाई बोलते हैं। तो वो जो भी इनकमिंग पावर सप्लाई रहता है उसके हिसाब से हम अपना पैनल के अंदर एक स्विच रखते हैं, जो वो पूरी कंपनी के पावर सप्लाई को सबसे पहला स्विच जो जीबी की ओर से जो भी पावर सप्लाई आता है उसको ऑन या ऑफ करता है, और उसके साथ शॉर्ट सर्किट ओवर करंट वॉट जो भी हम प्रोटेक्शन रखते हैं उसको प्रोटेक्शन उसके अगेंस्ट में देता है। देन है एक्सप्लोजन प्रूफ कैटेगरी। अभी कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो फायर हजार्डियस रहती है, शॉर्ट सर्किट हजार्डियस रहती है, लाइक वी कैन से द फार्मा कंपनीज, एंड देन वाटर इंडस्ट्रीज, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज। तो डिफरेंट तरह की जो इंडस्ट्री होती है वो एक्सप्लोजन प्रूफ रहती है। तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैबिनेट्स बनाते हैं। जिन फॉर एग्जांपल हम एस एस के बनाते हैं, एमएस के बनाते हैं। तो एक्सप्लोजन प्रूफ रहता है उसमें हम एसएस यूज करते हैं। अभी जो नॉर्मल कैटेगरी रहती है उसके अंदर एमएस का रहते हैं, और उसके भी साथ जो नॉर्मल रहती है उसमें हम फाइबर का बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज एक्सप्लोजन और एप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक इक्विपमेंट का एप्लीकेशन अलग अलग रहता है। तो जैसा भी एप्लीकेशन रहता है उसके हिसाब से हम अपना पैनल का साइज और पैनल का डिजाइन वगैरह डिसाइड करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पे है कि कितने टाइप्स ऑफ, मेजरली कितने टाइप्स ऑफ कंट्रोल पैनल रहते हैं। तो सबसे पहला है पावर कंट्रोल सेंटर पैनल। अभी ये पावर कंट्रोल सेंटर पैनल क्या होता है कि जो नॉर्मली पावर को कंट्रोल करता है, सिर्फ पावर को ऑन ऑफ करता है, और उसके साथ शॉर्ट सर्किट ओवर करंट वगैरह जो बेसिक प्रोटेक्शन होता है वो देता है। ध्यान सेकंड है मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल। Motor control center panels are meant to control the motors in different kinds of application and different kind of conditions. Then है automatic power factor correction panel. अभी ये ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल क्या है उसका समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में देता हूँ। चलो पहले ओवरव्यू देता हूँ। देन है ऑटो मेंस फेलियर पैनल। अभी ऑटो एएमएफ पैनल क्या रहता है कि ऑटोमेटिक डीजी सेट रहता है। तो हम बैकअप के लिए जीबी का सप्लाई सपोज कट ऑफ होता है तो हम बैकअप के लिए जनरेटर का सेट लगाते हैं। तो ये ऑटोमेंस पैनल पैनल क्या करता है कि सपोज जीबी का सप्लाई आया है, पर हम इंडिया में हम जानते हैं कभी कभार जीबी का सप्लाई कट भी हो जाता है या फिर कुछ मेंटेनेंस पर्पस के कारण वो बंद होता है, तो हम बैकअप के लिए जनरेटर रखते हैं। तो ये एएमएफ पैनल क्या करेगा, अगर जीबी का सप्लाई कट हुआ तो उसको डिटेक्ट करेगा कि चलो ये सप्लाई बंद हो गया, डीजी को अपने आप जनरेटर सेट को अपने आप चालू करेगा, उसका सप्लाई मेजर करेगा। अगर उसका सप्लाई बराबर है, थ्री फेज मेजर करेगा, वोल्टेज करंट वगैरह मेजर करेगा, नहीं बराबर है तो उसको मेन लाइन के साथ कनेक्ट कर देगा। तो ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ये चेंज ओवर हो जाएगा, उसको एएमएफ पैनल बोलते हैं। पीएलसी नेक्स्ट है पीएलसी ऑटोमेशन कंट्रोल पैनल विद स्काडा। पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, ये हम आज के सेशन में हमारा सेकंड टॉपिक है, उसका हम डिटेलिंग करेंगे। रिले लॉजिक पैनल। अभी ये रिले लॉजिक पैनल क्या रहता है कि एंशियंट थोड़े साल, ये पीएलसी अभी अभी बोले तो लगभग 30-40 साल से इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके पहले ये भी जो कंट्रोल पैनल बनते थे तो पहले क्या करते थे, अभी भी करते हैं इकोनॉमिक बनाने के लिए पैनल को, कि जो लॉजिक हम पीएलसी में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं वही लॉजिक हम हार्ड वायरिंग और फिजिकली रिले को यूज करके हम बना सकते हैं। तो ये रिले लॉजिक पैनल रहता है। फिर कस्टमाइज पैनल फॉर स्पेशल पर्पस मशीन। अभी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मशीन रहते हैं कि जो बल्क में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, पर्टिकुलर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के आधार पे वो मशीन बनते हैं, उसको हम एसपीएम बोलते हैं, स्पेशल पर्पस मशीन। अभी एसपीएम मशीन के लिए पैनल भी एसपीएम जैसा ही होगा, कस्टमाइज पैनल होगा, स्पेशल पर्पस पैनल होगा। तो उसके लिए एसपीएम मशीन के लिए कस्टमाइज कंट्रोल पैनल बनते हैं। अभी ये नेक्स्ट, हाँ अभी कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल पैनल। तो ये सबसे मेजर थिंग है कि हमारे कंट्रोल पैनल में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। जैसे कि मैंने बताया सबसे बेसिक रहता है एनक्लोजर। एनक्लोजर के बाद आता है
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस, आपने नाम सुना होगा एमसीबी, एमसीसीबी, एसीबी एटसेट्रा। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी का फुल फॉर्म है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, एसीबी का फुल फॉर्म है एयर सर्किट ब्रेकर। ये एमसीबी, एमसीसीबी और एसीबी ये तीनों हम लगभग फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में हमको इलेक्ट्रिकल सिलेबस में पढ़ने में आता है कि जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर रहता है वो नॉमिनल 10K मीन्स उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी 10 किलो एम्पियर तक रहता है, 10,000 किलो एम्पियर 10,000 एम्पियर तक रहता है, तो उसके हिसाब से वो प्रोटेक्शन देता है। एमसीसीबी आता है तो उससे कुछ प्रोटेक्शन वो ज्यादा देता है, मोल्डेड के हैवी रेटिंग के लिए लेता है लेते हैं। और एसीबी आता है, वो एसीबी 800 एम्पियर से अप, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 एम्पियर के लिए हम एसीबी यूज करते हैं। देन प्रोटेक्शन रिले, वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले रहता है जो एमसीबी, एमसीसीबी और एसीबी को फॉल्टी कंडीशन में ट्रिप करता है। अभी वोल्टेज प्रोटेक्शन इंडस्ट्री में हम जो सब लोग जानते हैं, अभी अब घर में भी हमारे आजकल तो होता है कि कभी कभार ओवर वोल्टेज आता है, लो ओवर वोल्टेज आता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इसके लिए हम ईएलसी भी रखते हैं। तो दिस इज द सेम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले। देन है ओवरलोड प्रोटेक्शन, कि हमारा मोटर है फॉर एग्जांपल 20 एम्पियर तक का उसका कैपेसिटी है, 20 एम्पियर से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा प्रोटेक्शन है तो 20 एम्पियर का स्विच हम रखते हैं कि चलो 20 एम्पियर से ज्यादा करंट ले रहा है तो वो एमसीबी या एमसीसीबी या एसीबी वो अपने आप ट्रिप हो जाएगा, तो ये ओवरलोड प्रोटेक्शन रहेगा। देन एनी अदर स्विच गियर कंपोनेंट फॉर मेजरिंग और मॉनिटरिंग पर्पस इज लाइक मेजरिंग पर्पस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटर्स रहते हैं, एम्पियर मीटर है, वोल्टेज मीटर है, थ्री फेज मीटर है, सिंगल फेज मीटर है, पावर फैक्टर मेजर करते हैं, किलोवाट मेजर करते हैं, कितना यूनिट का कंजप्शन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का वो मेजर करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं इंडिकेटर्स, पुश बटन, कनेक्टिंग टर्मिनल्स फॉर आउटगोइंग्स एंड केबल्स। ये कनेक्टिंग टर्मिनल्स क्या रहता है कि फील्ड का इक्विपमेंट फील्ड में है और पैनल में हम जो भी वायरिंग करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट के साथ, तो वो उसका वायर हम नीचे टर्मिनल पे आके, टर्मिनल मीन्स यू कैन से कनेक्टर्स, टर्मिनल पे आके हम छोड़ देते हैं, तो फील्ड में से जो भी आएगा वो पैनल के साथ वो टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि अगर सपोज फ्यूचर में हमको पैनल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे कर लगाना है कि कुछ मेंटेनेंस पर्पज के लिए फील्ड के कंपोनेंट को अलग करना है, तो इसके लिए ये हम कनेक्टर्स लगाते हैं। एंड द केबल्स, दीज आर द बेसिक थिंग्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनक्लोजर। इस तरह का कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, ये मेरा ही पेन बनाया हुआ पैनल है कि उस तरह का एनक्लोजर रहता है, उसके अंदर एक माउंटिंग प्लेट रहता है, माउंटिंग प्लेट के ऊपर अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स जो भी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया वो हम लगाते हैं। द मेन विजिबल पार्ट ऑफ अ कंट्रोल पैनल, the purpose of an enclosure is to hold and protect the component from the environment and to protect electrical shocks and equipment users. The selection of enclosure is based on dimension of switchgear item and inside in it. डायमेंशन जो भी रहता है अंदर, जो एमसीबी, एमसीसीबी या फिर पीएलसी गिनो, रिले गिनो, व्हाटएवर जो भी कॉन्टेक्ट रहता है, रिले रहता है, जो भी रहता है उसके डायमेंशंस के हिसाब से हमको एनक्लोजर का साइज नक्की करना रहता है। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि ये एमएस में से बनता है, एसएस में से बनता है या फिर फाइबर में से बनता है। और ये एरिया ऑफ लोकेशन ऑफ द पैनल, पैनल कहाँ पे लगने वाला है उसके हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन तय होता है। जैसे कि वो आउटडोर कंडीशन में है, इंडोर कंडीशन में है, हजार्डियस एरिया में है कि नॉन हजार्डियस एरिया में है। एक्सप्लोजन प्रूफ पैनल्स विद IP65, 66 मेटालिक एनक्लोजर, जैसे कि आईपी रेटिंग, ये आजकल हम सबको पता है कि आईपी रेटिंग क्या रहता है, क्योंकि हम मोबाइल खरीदते हैं, वॉच खरीदते हैं, तो वो उसमें एग्जांपल देते हैं कि IP68 प्रोटेक्शन देते हैं, IP66 प्रोटेक्शन देते हैं। IP66 के अबाव का जो भी रेटिंग रहता है वो वाटर प्रूफ में जाता है, और IP66, 65 के नीचे का जो भी रेटिंग है मीन्स IP54, IP55 वो डस्ट एंड वर्मिंग प्रूफ रहता है, जो वाटर प्रूफ नहीं रहता है। ओनली डस्ट एंड वर्मिंग प्रूफ, जो डस्ट से हमको और प्रोटेक्शन देता है। मोस्टली नॉन एक्सप्लोजन प्रूफ एरिया रहता है या फिर इंडोर एरिया रहता है, वो IP54, 55 के हिसाब से रहता है।
और जो आउटडोर कंडीशन में पैनल रहने वाली है, ये जो ओपन एरिया या फिर ग्राउंड में लगाते हैं या फिर ट्रांसफार्मर के साथ लगाते हैं, तो वो जो भी पैनल रहता है वो IP65 और 66 के हिसाब से बनाया जाता है। ये है व्हाट इज MCC एंड PCC पैनल। अभी MCC पैनल को हम डिटेल में समझेंगे, मैं आपको लिए उसके लिए बताता हूँ। दिस इज द एग्जांपल ऑफ MCC पैनल। MCC पैनल में तीन चीजें रहती है। सबसे पहली है पावर सर्किट, दूसरी है कंट्रोल सर्किट और तीसरा है प्रोटेक्शन। तो ये मैंने देखा कि देखो पावर सर्किट के लिए सबसे पहले MCB और कॉन्टेक्टर्स रहते हैं, उसके बाद ये कंट्रोल सर्किट है जिसके लिए हम रिले यूज करते हैं, और तीसरा है प्रोटेक्शन, इसके लिए ओवरलोड रिले और वाटेक्सर जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है वो उसके लिए रहता है। अभी मोटर स्टार्टिंग मेथड्स, यहाँ पे मैं मेजरली तीन मेथड को कंसिडर कर रहा हूँ, और चौथा है VFD स्टार्टर, उसका मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। अभी ये है, पहला है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, दूसरा है स्टार डेटा स्टार्टर और तीसरा है सॉफ्ट स्टार्टर। अभी ये है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में क्या रहता है कि हम सबसे पहले एक MCCB या MCB यूज करते हैं या फिर फ्यूज यूज करते हैं, उसके बाद रहता है कॉन्टेक्टर, उसके बाद रहता है थर्मल ओवरलोड रिले। थर्मल ओवरलोड रिले हमको पढ़ाई में आता है कि वो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटेलिक कंपोनेंट्स को मिक्स करके बनाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट रहता है। तो इसके हिसाब से अगर लोड ज्यादा बढ़ता है तो हीटिंग के कारण वो सप्लाई को कट कर देता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मीन्स जैसे ही हम पुश बटन को दबाएंगे तो जो बीच का कॉन्टेक्टर है वो ऑन होता है, उसका कॉइल ऑन होता है, लैच होता है, और वो कॉन्टेक्टर चालू होकर सीधा सप्लाई को मोटर को देता है। इसके लिए उसको बोलता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसमें सप्लाई के साथ कुछ भी प्रोसेस, सप्लाई मीन्स पावर के साथ कुछ भी प्रोसेस किया नहीं जाता है, उसमें करंट बढ़ता भी नहीं है, कम भी नहीं होता। यहाँ पे लिखा है कनेक्ट मोटर स्टेटर वाइंडिंग डायरेक्टली टू द पावर सप्लाई, suitable for stable electrical power supply, mechanical stiff and well designed shaft system। मीन्स छोटे रेटिंग्स 1 HP है, 2 HP है, 3 HP है, 5 HP, 7.5 HP, 10 HP। जनरली इंडस्ट्री में 10 HP या 12.5 HP तक ही डीओल स्टार्टर का यूज किया जाता है। कई कई इंडस्ट्री 10 HP में भी डीओल स्टार्टर की जगह स्टार डेटा स्टार्टर ही लेती है। इसलिए ये छोटे रेटिंग में डायरेक्टली अगर हम मोटर को सप्लाई देते हैं तो उसमें स्टार्टिंग टॉर्क की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इसलिए हम डीओएल स्टार्टर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर को हम थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। ये एक एग्जांपल दिया गया है मोटर के वाइंडिंग का। मोटर में तीन तरह की वाइंडिंग होती है, एक आर फेस जिसको हम U1 बोलेंगे, दूसरा है बी फेस जिसको हम V1 बोलेंगे, और तीसरा है वाई फेस, और तीसरा है बी फेस जिसको हम W1 बोलेंगे। UVW उस तरह से जनरली मोटर में वाइंडिंग के नाम दिए जाते हैं UVW के हिसाब से। इसमें तीन तरह की वाइंडिंग रहती है। अभी स्टार और डेल्टा कनेक्शन हम सब लोग समझते हैं कि देखो तीन कॉइल का एक टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं और बाकी के तीन टर्मिनल के ऊपर सप्लाई देते हैं, तो ये हो गया स्टार कनेक्शन। और डेल्टा कनेक्शन में हर एक कॉइल अपने दोनों टर्मिनल के से दूसरी कॉइल के साथ कनेक्टेड रहती है, इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। अभी हमको पढ़ाई में एक छोटी सी और बेसिक चीज आती है कि स्टार कनेक्शन में वोल्टेज, फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज से कम रहता है, और करंट लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज का करंट सेम रहता है, लाइन करंट और फेस करंट सेम रहता है। इसके लिए ये छोटे रेटिंग के लिए हम स्टार कनेक्शन का ही कनेक्शन करते हैं, उसमें हम डीओएल यूज करते हैं। बट बड़े रेटिंग है जैसे कि 15 HP, 20 HP, हम उसके लिए स्टार डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं। स्टार डेल्टा कनेक्शन में क्या रहता है कि फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम रहता है, बट लाइन करंट फेस करंट से ज्यादा रहता है, मीन्स फेस करंट कम रहता है। तो उसके लिए हम एक अलग तरह की सिस्टम का यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया है। ये देखिए यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर में
तीन कॉन्ट्रैक्टर का यूज होता है। एक रहता है मेन कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा रहता है डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर और तीसरा रहता है स्टार का कॉन्ट्रैक्टर। तो उस इसमें हम एक टाइमर लगाते हैं। उसमें क्या रहता है कि सबसे पहले फ्यूज में से सप्लाई हमने जब चालू किया, जब स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो मेन कॉन्ट्रैक्टर और जो तीसरा वाला स्टार का कॉन्ट्रैक्टर है वो दोनों एक साथ चालू होते हैं। तो क्या रहता है, तीन सप्लाई आया और मोटर में से दूसरे, यहाँ पे जो बताया है यहाँ पे 6 टर्मिनल रहते हैं। अभी हमने जैसे इस स्लाइड में बताया मैंने कि मोटर में 6 टर्मिनल रहते हैं। अगर हम स्टार को स्टार में कनेक्ट करते हैं तो तीनों टर्मिनल को मोटर के अंदर ही शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पे दूसरे में UV1 V1 W1 में सप्लाई देते हैं। तो ये तो स्टार कनेक्शन हो गया। पर यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या करते हैं कि U1 V1 W1 आ गया और U2 V2 W2 को हम फिर से पैनल में लाते हैं और 3 टर्मिनल से, और उसको एक स्टार के कॉन्ट्रैक्टर को मिला के उसको हम गोल घुमा के शॉर्ट कर देते हैं। तो अल्टीमेटली जब स्टार का कॉन्ट्रैक्टर चालू होगा तो RYB मीन्स U1 U2 V2 W2 शॉर्ट हो जाएगा। तो जब हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो मेन कॉन्ट्रैक्टर और स्टार का कॉन्ट्रैक्टर एक साथ चालू होगा। तो मोटर स्टार में ही चालू होगी। अभी ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जब स्टार्ट होता है हैवी मोटर 20 HP 25 HP जो भी हैवी मोटर स्टार्ट होता है तो उसको स्टेडी मोमेंटम में से स्पीडी मोमेंटम में आने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ती है। तो वो इनिशियली ज्यादा करंट की उसको जरूरत रहती है, तो ज्यादा करंट उसको स्टार में ही मिल सकता है। डेल्टा में 1/3 करंट मिलता है, अभी हमने देखा। तो स्टार्टिंग में स्टार में चालू होते, फिर जैसे ही मोटर का करंट स्टेबल हो जाएगा तो वो स्टार में से डेल्टा में आ जाएगा। मीन स्टार का कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाएगा और डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर चालू हो जाएगा। तो जैसे ही डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर चालू होगा तो यहाँ पे स्कीम किस तरह से हो जाएगी, देखो U1 है और U2 है। तो U1 है और नीचे U2 निकल के यहाँ पे ऐसे घूम के कनेक्ट हुआ बी में से निकला, ये बी में से आया, W1 में से आया, W2 निकल के कनेक्ट हुआ V1 में, V1 में से निकला V2 निकला, V2 निकल के कनेक्ट हुआ U1 में। तो ये पूरा डेल्टा कनेक्शन हो गया। पहले स्टार में चालू हुआ मोटर, उसके बाद वो डेल्टा कनेक्शन में हो चला गया। तो इस तरह से वर्क करता है स्टार डेल्टा कनेक्शन। उसके लिए स्पेशल तरह का स्टार डेल्टा टाइमर भी आता है जो जनरली पैनल में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में उसके साथ लगाते हैं कंट्रोलिंग के लिए। ओके, तो ये हो गया MCC पैनल। अभी आता है PCC पैनल। PCC पैनल के लिए मैंने जैसे आगे बताया, PCC मींस पावर कंट्रोल सेंट्रल पैनल। इट यूज्ड टू कंट्रोल द पावर ऑफ डिफरेंट फील्ड इक्विपमेंट एंड प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट एनी फॉल्टी कंडीशन। इट इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस। फिर इसके लिए पहले मैं आपको बेसिक कंपोनेंट समझा देता हूँ। ये है APFC पैनल। अभी APFC पैनल में क्या रहता है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल। अभी हम सब लोग एक चीज पढ़े हैं कि जब इंडक्टिव लोड रहता है लाइक मोटर्स एंड अदर, मोटर का लोड में जो अंदर मोटर के अंदर कॉइल रहता है वो इंडक्टिव लोड रहता है। तो जैसे ही इंडस्ट्री में इंडक्टिव लोड बढ़ता है तो पावर फैक्टर लैग करता है। आइडियल कंडीशन में तो वोल्टेज और करंट एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, पर आइडियल कंडीशन कभी होती नहीं है, वो हम जानते हैं। तो हमेशा मोटर का लोड रहता है और कोई भी अगर ट्यूबलाइट मानो, बल्ब ले लो, कुछ भी लाइटिंग वगैरह ले लो, उस सब में इंडक्टिव लोड ही रहता है। तो जैसे इंडक्टिव लोड का कंजप्शन बढ़ता है तो पावर फैक्टर लेग करता है, वो करंट वोल्टेज से लेग करता है, तो पावर फैक्टर डाउन जाता है। बट आइडियली पावर फैक्टर एक रहना चाहिए। तो हमारा इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर पावर फैक्टर 0.6 से कम जाता है तो जीबी हमको पेनल्टी लगाता है, मीन्स यूजर को पेनल्टी लगाता है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जो पूरा जीबी है वो एक इनफाइनाइट ग्रिड है। अगर हमारा पावर फैक्टर लेग जाता है तो होता क्या है कि हमारा पावर का कंजप्शन बढ़ता है, बट वो इफेक्टिव कंजप्शन नहीं रहता। इंडक्टिव लोड के कारण इमेजिनरी कंजप्शन बढ़ जाता है।
तो इमेजिनरी कंजप्शन के कारण क्या होता है, लॉस हमें भी जाता है कि पावर का कंजप्शन हो रहा है पर हम इफेक्टिवली पावर का कंजप्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल तो ज्यादा आएगा ही आएगा, प्लस जो हमारा इंडक्टिव लोड बढ़ा उसके कारण ग्रिड में भी इंस्टेबिलिटी आएगी। वो जो इंस्टेबिलिटी आई उसका पेनल्टी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमें लगाएगा। अगर आपने देखा होगा, अभी आप एक चीज ट्राई करना, जो आपके घर के बाहर भी जो थ्री फेज मीटर लगा होगा या फिर कोई भी इंडस्ट्री के बाहर थ्री फेज का मीटर लगा होगा, उसमें हम जो अभी छोटे से पुश बटन होते हैं ना, वो अभी हम एक्सेस कर पाते हैं। अभी जो नए मीटर आते हैं ना इंडस्ट्री के, तो उसके हम एक्सेस कर पाते हैं। उसको आप पुश बटन प्रेस करोगे ना, तो उसके अंदर एक वैल्यू रहता है पीएफ वैल्यू, वो पावर फैक्टर का वैल्यू आप चेक कर पाओगे। अगर आपके घर पे थ्री फेज का मीटर होगा तो वहां पे भी आप चेक कर पाओगे। तो आपको जनरली घर का रहता है तो 0.8 0.9 जैसा बताएगा। तो हम जनरली हम घर में पावर फैक्टर के करेक्शन के लिए कुछ करते नहीं है, पर इंडस्ट्री में वो रहता है 0.5 0.6 तक पहुंच जाता है। तो इसके कारण क्या रहता है, इंडक्टिव लोड बढ़ा, तो अभी हमको रिटर्न पावर फैक्टर को स्टेबिलाईज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। क्योंकि कैपेसिटिव लोड से जो एक नया एक रिजल्टेंट फैक्टर मिलेगा, वो पावर और करंट दोनों को स्टेबिलाईज करके एक ही डायरेक्शन में ले आएगा, तो हमको पावर फैक्टर यूनिटी मिल जाएगा। तो ये एक बेसिक है। तो उसके कारण क्या करते हैं, हमारी जो पावर पैनल रहती है, अभी मैंने जैसे समझा था पीसीसी पैनल रहती है, जो हमारी कंपनी के सबसे मेन में जो मेन इनकमर वहां पे लगती है, तो उसके साथ हम कैपेसिटर लगा देते हैं। और ये क्या, ये एपीएफसी पैनल क्या करता है कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर डिटेक्ट करता है कि चलो इतना लेग जा रहा है, तो मैं मल्टीपल पावर कैपेसिटर के बैंक कनेक्ट कर देता हूँ। ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड रिले आता है इसके अंदर एपीएफसी पैनल में, वो पावर फैक्टर को सेंस करेगा और जितना जरूरत होगा उतने ही कैपेसिटर बैंक को सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट पावर फैक्टर हमको यूनिटी मिल जाएगा। ओके। इसके लिए अगर डिटेल में जानना हो और अगर कुछ ज्यादा डिटेल में समझना हो, तो आप मयंक भाई से मेरा नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, ये यहाँ पे सिर्फ मैं ओवर ही बता रहा हूँ आपको। ओके। नेक्स्ट है इनकमर स्विचेस विथ हैंडल एंड शाफ्ट। अभी जैसे मैंने बताया कि हम हमारा लोड रहता है 100 HP, 200 HP, 300 HP, जो हम जीबी से डिमांड करते हैं कि नहीं मेरा इंडस्ट्री का लोड इतना है, तो उसके हिसाब से वो लोग हमको पावर सप्लाई देते हैं। उसके हिसाब से चार्जेस भी अलग अलग रहते हैं, पर जीबी से जितना लोड आ रहा है मीन्स हमारा डिमांड है, उस हिसाब से हमको एक स्विच रखना पड़ता है जो जीबी के पावर को ऑन ऑफ कर सके और या फिर फॉल्टी कंडीशन में हमको प्रोटेक्शन दे सके। यहाँ पे लिखा है इनकमर इज जनरली अ डिवाइस used to control, protect and isolate the equipment in case of overcurrent and short circuit condition. De-energize the equipment to allow the maintenance in order to clear the faults. बराबर। इसके लिए हम एमसीबी यूज करते हैं, सिंगल पोल, टू पोल, थ्री पोल, फोर पोल। घर घर हमारा जो रेसिडेंशियल सेक्शन होता है जनरली वहाँ पे सिंगल पोल या टू पोल का एमसीबी यूज होता है। और इंडस्ट्रियल एरिया जो भी होता है यहाँ पे थ्री पोल, फोर पोल, क्योंकि थ्री फेज रोड रहता है, उसके साथ एमसीबी भी यूज करते हैं। और ज्यादा हैवी हमने डिमांड रखा हुआ है तो उसके हिसाब से हम एसीबी भी यूज करते हैं। एमसीबी रहता है वो जनरली 6 एम्पियर और 1 एम्पियर से चालू होता है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64 और 80, यहाँ तक का एमसीबी इन जनरल अवेलेबल रहता है। उससे बड़ा रेटिंग के लिए जनरल लोग एमसीसी भी यूज करते हैं। 100 एम्पियर, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800। जनरली लोग एमसीसीबी 800 एम्पियर्स तक यूज करते हैं। उससे हैवी रेटिंग के लिए जनरली एसीबी यूज किया जाता है क्योंकि उसका पावर रेटिंग ज्यादा रहता है और एमसीसीबी उतना कैपेबल नहीं रहता कि मेजर फॉल्टी कंडीशन में प्रोटेक्ट कर पाए। ओके। उसके बाद रहता है एसीबी। एसीबी रहता है 800 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 1250 एम्पियर, 1600 एम्पियर, 2000 एम्पियर, 2500 एम्पियर, 3200 एम्पियर, 4000 एम्पियर, 5000 एम्पियर, 6000 एम्पियर।
इतने एम्पियर तक जनरली एसीबी अवेलेबल रहता है। आपको इसके बारे में डिटेल जानना हो तो अभी हमारी कंपनी में 2500 एम्पियर 3200 एम्पियर तक के पैनल रूटीन में बनते हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट करके आप यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो। फिर आता है स्विच गियर कंपोनेंट्स। Combination of electrical components like MCCB, MCB, contactor, overload relay, fuses are used to control, protect and isolate the electrical equipment. अभी आगे जैसे हमने डीएल स्टार्टर के लिए समझा, कॉन्टेक्टर रहता है, ओवरलोड रिले रहता है, टाइमर्स रहता है, पुश बटन, लैंप्स, बीएफडी, एसीबी। यहाँ पे जो ये फोटो दिया गया है, वो एसीबी का फोटो है। तो ये एसीबी इस तरह से बड़ा रहता है। फिर रहता है स्विच गियर कंपोनेंट्स। ये इसका डिटेल्ड फोटोग्राफ दिया, इंडिकेशन है। ये बीच वाला है, ये कॉन्टेक्टर है, उसके बाजू में ओवरलोड रिले है। उसके बाद रहता है ये सिर्फ टू चेंज ओवर है जो सिर्फ कंट्रोलिंग पर्पज के लिए यूज होता है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुश बटन दिए गए हैं। अभी पीएलसी का बेसिक चालू करने से पहले मैं एक वीडियो के द्वारा आपको थोड़ा सा बहुत पैनल का कंस्ट्रक्शन समझा लूँ आपको। जैसे अभी हमारा ह्यूमन बॉडी रहता है, तो वो क्या करता है कि आंख से देखता है, नाक से उसका स्मेल रहता है, कान से हम सुनते हैं, और हाथ से पकड़कर उसको फील करते हैं। उसी तरह से पैनल एक ह्यूमन बॉडी समझ लो कि एक ऐसा मशीन है जो सेंस भी करता है, फील भी करता है, और उसके हिसाब से फीडबैक भी देता है। तो इसके लिए ये सपोज फॉर एग्जांपल है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर यूज होते हैं। मीन जैसे कि प्रॉक्सी सेंसर, फिर मेटल डिटेक्टर सेंसर, मीन्स मूवमेंट सेंसर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर फील्ड में रहते हैं या फिर मशीन में रहते हैं। वो मशीन से उसका फीडबैक पैनल में जाता है। पैनल में रहता है पीएलसी। पीएलसी इज लाइक ब्रेन, जो पूरा तर्क वितर्क का कैपेसिटी उसमें रहता है। वो एक जैसे जिस तरह से हम प्रोग्रामिंग उसके अंदर करते हैं, उस तरह से वो सोच सकता है, उस तरह से वो फीडबैक दे सकता है। तो जो फील्ड में से जो भी इनपुट अंदर आ रहा है, मीन्स दे आर मीन्स सेंसर आइज लाइक आइज ऑफ द कंट्रोल पैनल। तो उसको देख के उसके हिसाब से मशीन को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट दे सकता है। ये है बेसिक्स ऑफ कंट्रोल पैनल, सॉरी ओवरव्यू है कंट्रोल पैनल का। कंट्रोल पैनल में किस तरह से चीजें रहती है। इस तरह से कैबिनेट रहता है, जैसे मैंने पहले समझाया था। कैबिनेट्स, इसके अंदर एक माउंटिंग प्लेट रहता है। तो समझाओ, ये जो सारे कंपोनेंट्स रहते हैं वो पीछे एक माउंटिंग प्लेट रहता है। माउंटिंग प्लेट मीन्स एक प्लेट रहता है जिसको उसके अंदर हम अलग से वो रहता है जिसको हम बूस्ट के ऊपर माउंट करते हैं। ये प्लेट के ऊपर जो जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच गियर कंपोनेंट है उसको उसके ऊपर हम माउंट करते हैं। फिर उसके बाजू में यहाँ पे बीच बीच में जो पट्टी है उसको वायरिंग डक्ट बोलते हैं। ये पीवीसी चैनल रहती है। और कंपोनेंट जिस चीज के ऊपर एक छोटी सी चैनल है जो वो है उसको एमसीबी चैनल बोलते हैं। मेटल चैनल रहता है जिसके ऊपर उसको डीन चैनल भी बोलते हैं, डीन रेल माउंटिंग, इस तरह से उसका बोला जाता है। ये देखो यहाँ पे बताया गया है कि एक माउंटिंग प्लेट रहता है जो उसके अंदर फिक्स होता है। उसके बाद रहता है एमसीबी चैनल, इस तरह से माउंटिंग रहता है। ये इसको बोलते हैं पीवीसी चैनल। जैसे मैंने बताया वायरिंग, जो भी वायरिंग रहता है
वो उसके अंदर प्रॉपरली फिनिश्ड रहता है, उसका प्रॉपरली ड्रेसिंग किया जाता है जो इसके अंदर रहता है। ये है एमसीबी। जैसे मैंने बोला कि हर एक पैनल में एक इनकमर एमसीबी रहता है जो पूरी पैनल को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सप्लाई से आइसोलेट करता है, ऑन या ऑफ करता है। उसका सप्लाई आता है, फिर उस एमसीबी में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई जो भी हमारे इक्विपमेंट में है वो पास होते हैं। हमारे बाहर से जो सप्लाई आता है वो 230 वोल्ट एसी आता है या फिर 440 वोल्ट एसी आता है। तो वो जो सप्लाई रहता है वो फ्लक्चुएट रहता है, मीन्स कभी कभार ज़्यादा हो जाता है, कभी कभार कम हो जाता है। तो हमारा जो भी कंपोनेंट मीन्स कंट्रोल के लिए जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं या फिर पीएलसी रहता है, एसएमपीएस रहता है, वो सेंसिटिव रहते हैं। तो उसको ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज या फिर सर्ज से बचाने के लिए हम एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर रखते हैं। तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर उसका वोल्टेज को ड्रॉप करता है और सप्लाई के फ्लक्चुएशन को वो आइसोलेट कर देता है। तो यहाँ पे एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर बताया है, बाहर से 440 वोल्ट एसी आता है, 220 120 या फिर 220 वोल्ट को हम बाहर निकालते हैं और उसको हम फ्यूज में से लेके फिर कंट्रोल सर्किट में डालते हैं। ये आ गया हमारा एसएमपीएस। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पर सीमेंस के पीएलसी और सीमेंस का एसएमपीएस बताया गया है। एसएमपीएस क्या करता है कि 220 या फिर 120 वोल्ट एसी में से कांस्टेंट 24 वोल्ट डीसी देता है, क्योंकि हमारे जो भी पीएलसी वगैरह या फिर ऑटोमेशन के कंपोनेंट्स रहते हैं वो 24 वोल्ट डीसी पे काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कनेक्टिंग टर्मिनल रहते हैं जो सिर्फ डिस्कनेक्टिंग के लिए काम करता है। तो ये पीएल एसएमपीएस में से पहले सप्लाई इस टर्मिनल में लिया और टर्मिनल में से लेके फिर पीएलसी में देंगे। तो हम कुछ भी मेंटेनेंस करना हो फ्यूचर में तो इसके लिए डिस्कनेक्टिंग टर्मिनल का यूज किया है। ये हमारा पीएलसी आ गया। पीएलसी में डीआई और डीओ रहता है, डिजिटल इनपुट या फिर डिजिटल आउटपुट या फिर एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट। उसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ, पहले यही देख लीजिए। ये जो मैंने बताया वैसे ये प्रॉक्सी सेंसर है, ये मूवमेंट डिटेक्टर सेंसर है, ये फील्ड के सेंसर है। जो सेंसर का इनपुट इसमें आ रहा है, सेंसर को भी रन होने के लिए 24 वोल्ट डीसी चाहिए और वो 24 डीसी लेके रन होने के बाद एक इनपुट देते हैं जिसके एक एक बार यहाँ पे इनपुट में आया, जैसे कि आप देख सकते हो। ये एचएमआई है, जो एचएमआई कभी कभार फील्ड में भी लगता है और कभी कभार पैनल की बॉडी के ऊपर भी माउंट किया जाता है। ये हमने देखा कि यहाँ पे एक ईथरनेट स्विच रखा है, वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है।
पीएलसी से एचएमआई को कम्युनिकेशन करने के लिए रहता है। एचएमआई मीन्स ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो ये टच स्क्रीन रहता है कि जिससे हम पीएलसी के में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको डिस्प्ले भी करा सकते हैं, और पर्टिकुलर जो इनपुट वगैरह जो हमको बाहर से देना है, पुश बटन वगैरह रखना है या फिर प्रोसेस को मॉनिटरिंग करना है और हमारे हिसाब से प्रोसेस करवाना है, उसका डेटा भी इसके अंदर हम टच स्क्रीन के द्वारा फीड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कंट्रोल पैनल का एक पीएलसी पैनल जो कैसा होता है उसका बेसिक मैंने समझा। अभी हम पीएलसी पैनल के लिए डिटेल में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा है, अ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल्स इज अ मिनिएचर इंडस्ट्रियल ग्रेड कंप्यूटर that contains hardware and software capable of being programmed to perform control functions। जैसे कि मैंने समझा, इसके अंदर हम पूरा एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। जनरली इंडस्ट्री में लेडर लॉजिक का यूज होता है। जैसे पर्टिकुलर हमें एक रिले रहता है, तो रिले में हमको हमको पढ़ने में आया था कि एक एनओ रहता है और एक एनसी रहता है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट रहता है। तो इसके प्रोग्रामिंग के अंदर भी ऐसा ही लॉजिक रहता है। पर्टिकुलर जो भी इनपुट अंदर आ रहा है, वो इनपुट जब ऑन होगा या लो होगा, मीन्स वन होगा या फिर जीरो होगा, हाई होगा, लो होगा। तो जैसे इनपुट पीएलसी को मिल रहा है, तो पर्टिकुलर इनपुट को हम डिफरेंट जगह पे यूज करके उसका आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो इनपुट के द्वारा हम आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको लेडर लॉजिक बोलते हैं। और जो इनपुट आ रहा है या फिर इनपुट हम दे रहे हैं, उस बटन से इनपुट दे रहे हैं या फिर अंदर टाइमर बना के इनपुट दे रहे हैं, तो जो जो भी इनपुट दे रहे हैं उसके लिए आउटपुट है। तो आउटपुट भी इट्स अ काइंड ऑफ रिले, एनो कॉन्टेक्ट रहता है। उसके साथ द्वारा हम रिले चला सकते हैं, कॉन्टेक्टर चला सकते हैं, कॉन्टेक्टर को पिक कर सकते हैं, या फिर किसी और चीज के लिए पावर सप्लाई फ्लो करवा सकते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ पीएलसी कंट्रोलिंग द कॉन्टेक्टर। अगर हम हार्ड वायरिंग के थ्रू करते हैं, अगर पीएलसी यूज नहीं करते, तो स्टार्ट स्टॉप के लिए हम स्टार्ट स्टॉप पुश बटन रखते हैं कि स्टार्ट बटन दबाया मैंने तो कॉन्टेक्टर चालू हुआ, और चालू होने के बाद सप्लाई पास हुआ। और अगर हमने पीएलसी में लॉजिक लिखा है कि पर्टिकुलर कोई इनपुट आता है तभी वो कॉन्टेक्टर को चालू करे, तो पर्टिकुलर कुछ प्रॉक्सी या वगैरह कुछ सेंसिटिव इनपुट आता है तो वो पीएलसी में जाता है, और पीएलसी में हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर ये इनपुट में तब ये आउटपुट चालू होना चाहिए। तो वो जब आउटपुट चालू होगा तो उसके साथ उसका कॉन्ट्रेक्टर चालू होगा, कॉन्ट्रेक्टर चालू होगा तो सप्लाई पास होगा, तो सप्लाई पास होगा तो फील्ड में जो भी स्टार्टर वगैरह की पावर की एप्लीकेशन है वो रन होगी। तो इसके हिसाब से ये पीएलसी वर्क करता है। बिफोर पीएलसी, जैसे कि मैंने समझा, जब पीएलसी नहीं था तो पावर रिले यूज करते थे, कंट्रोल रिले यूज करते थे, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रेक्टर्स यूज करते थे। तो बहुत सारी, जैसे मैंने बोला था रिले पैनल, तो हम हार्ड वायरिंग से लॉजिक चला बनाते थे। कि हमारा लॉजिक कैसा था कि जब हमारे फील्ड में ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है सभी कस्टमर्स की कुछ, कि ये पर्टिकुलर ये प्रोसेस जब प्रोसेस में आए तभी ये प्रोसेस होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस बंद हो रहा है, मीन्स ये मोटर बंद हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे वाटर का फ्लो नहीं है तो पर्टिकुलर उसका मोटर नहीं ऑन होना चाहिए। तो उस तरह के लिए हम पहले क्या करते थे कि वाटर के फ्लो के लिए एक सेंसर लगाते थे। सेंसर का इनपुट आता था पैनल में, पैनल से कुछ रिले चलाते, तो वो इनपुट से कुछ रिले चलाते थे। वो रिले का जो एनो रिले का जो पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट रहता है, एनो या एनसी, उससे हम और एक कॉन्ट्रेक्टर चलाते थे, और वो एक कॉन्ट्रेक्टर को चला के फिर हम मोटर के सप्लाई को कंट्रोल करते थे। उसके लिए हम पहले बहुत सारे हार्ड वायरिंग करते थे। उसके कारण होता क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी, कॉस्टिंग बढ़ता था, हार्ड वायरिंग बढ़ जाता था, लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, मीन्स पैनल भी बहुत ज्यादा बल्कि रहता था। फिर इस इतने बड़े पैनल में जब भी कोई छोटा सा प्रॉब्लम आता था तो ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत दिक्कत हो जाती थी, और पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस रूटीन फॉलो करना पड़ता था। हर एक टाइम के लिए, हर एक कुछ टाइम के बाद मेंटेनेंस करना ही पड़ता था। और
अगर कुछ भी चेंजेस, छोटा सा भी चेंजेस करना हो तो पूरा वायरिंग में चेंजेस करना पड़ता था कि चलो ये रिले की जगह ये रिले, अब हमारा लॉजिक चेंज हुआ है तो नहीं, अभी इसकी जगह ये लगाओ, पूरा वायरिंग चेंज करो, वगैरह वगैरह, बहुत सारी दिक्कत रहती थी। और अभी पीएलसी में क्या होगा, दे आर रिप्रोग्रामेबल। हमने एक बार इनपुट का वायरिंग पीएलसी में कर दिया और आउटपुट का वायरिंग कर दिया, सीधा सिंपल। अगर हमको कुछ चेंजेस आया कि नहीं, तो चलो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया, कंप्यूटर में चेंजेस किया और प्रोग्राम को अपलोड कर दिया, तो अब हमारा लॉजिक चेंज हो गया। तो इजीली विदाउट मेंटेनेंस पूरा हमारा जो भी एप्लीकेशन है वो फुलफिल हो जाता है। सॉलिड स्टेट स्विचेस लास्ट मच लॉन्गर देन रिलेज। इसमें जो एसएसआर सॉलिड स्टेट स्विचेस लगता है वो रिले से ज्यादा उसका लाइफ रहता है। अभी कॉम्प्लेक्स लॉजिक, जो हम हार्ड वायरिंग में कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाते थे, वो एकदम इजीली सॉफ्टवेयर में हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग से बना सकते हैं। मल्टीपल डिवाइसेस कैन बी एम्बेडेड इन वन यूनिट। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले यूज करते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड यूज करते थे। अभी ये पूरा इतने एक छोटे से पीएलसी में हम प्रोग्रामिंग के द्वारा बना सकते हैं। कैन इजीली बी स्केल्ड अप और मॉडिफाइड, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका स्केल बढ़ाया जा कम कर किया जा सकता है। स्मॉलर फिजिकल साइज देन हार्ड वायरिंग सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया कि हमको 15-20 रिले यूज करना है, बरोबर, उसका पूरा लॉजिक है। पर 15-20 रिले की जगह हम छोटा सा पीएलसी रखेंगे तो पूरा रिले लॉजिक उसके अंदर ही हम बना सकते हैं, तो साइज भी छोटा हो जाएगा। इजियर एंड फास्टर टू मेक चेंजेस, बरोबर है। पीएलसी हैव इंटीग्रेटेड डायग्नोसिस ओवरराइड फंक्शंस। ये पूरा, जैसे हम कंप्यूटर में पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम को डायग्नोस कर सकते हैं, पूरा कुछ प्रोग्राम को ओवरराइड कर सकते हैं, उसके अंदर हम ओवरराइड मीन्स कुछ पासवर्ड प्रोटेक्शन रख सकते हैं कि नहीं, कुछ एप्लीकेशन कुछ लोगों को ही करनी है, कुछ लोगों को नहीं करनी है, वो पूरा वगैरह हम डायग्नोस एंड ओवरराइड फंक्शन पीएलसी के अंदर कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक्स आर सेंट्रली अवेलेबल मीन्स, अब अभी हमारे पास, मेरा बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लान है और मेरे 20-25 मशीन है मेरे कंपनी में, हर एक में मैंने पीएलसी लगाया हुआ है। तो पीएलसी में एक एडवांटेज क्या रहता है, वो कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, ऐसा फैसिलिटी रहता है। और पूरा कम्युनिकेशन एक मेन सिस्टम जिसको हम डीसीएस बोलते हैं उसके साथ भी कर सकते हैं। इसका मतलब मैं मेरी ऑफिस में बैठे बैठे ही 25 से 25 मशीन में पूरे पूरे प्लांट में क्या हो रहा है वो मैं एक जगह पे बैठ के मॉनिटर कर सकता हूँ और उसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। एप्लीकेशन कैन बी इमीडिएटली डॉक्यूमेंटेड। अगर मेरे पास पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो मैं 100% उसका डॉक्यूमेंटेशन इजीली कर सकता हूँ कि जैसे मुझे को कुछ ग्राफ बनाना है कि इतने टाइप में इतना प्रोसेस बना, उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है तो इजीली हम कर सकते हैं। एप्लीकेशन कैन बी डुप्लीकेटेड फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव। अभी अगर मैं मशीन मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास एक ही, जैसे मेरे पास 10 मशीन के ऑर्डर आए हैं, चलो मैं ये मशीन बना रहा हूँ, ये मशीन बना रहा हूँ, ये भी मशीन, तो सभी में लॉजिक तो सेम ही है, तो हर बार तो मेरे को सेम कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग नहीं करना है। सिर्फ एक पीएलसी बनाया, उसका प्रोग्राम बनाया, उसका प्रोग्राम का एक फाइल है, तो हर बार जो पीएलसी का वायरिंग होता है उसके अंदर सेम प्रोग्राम में डाल सकता हूँ। तो मेरे को रिपीटेडली हर बार सेम मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेस अमाउंट ऑफ स्पेस नीडेड, बरोबर है। चेंजेस आर इजियर एंड फास्टर टू इम्प्लीमेंट, ये भी डन हो गया। इंटीग्रेटेड डायग्नोसिस होगा, ट्रबल शूटिंग इज इजी। अभी इसमें क्या हो रहता है कि मेरा कुछ फॉल्ट आया है, तो पीएलसी में हम जो इनपुट लेते हैं, तो पीएलसी के अंदर जो हम एचएमआई यूज करते हैं या फिर पीएलसी के सॉफ्टवेयर तो हम देख सकते हैं, तो वो तुरंत बता देगा कि फॉल्ट किस जगह पे हुआ है। उसका डायग्नोस्टिक भी हम बहुत इजीली और इमीडिएटली कर सकते हैं कि चलो नहीं, इस जगह पे फॉल्ट हुआ है, और वहां पे जाके ही हम जो ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, पूरा सिस्टम चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा एडवांटेज है पीएलसी सिस्टम का। ओके, तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ पीएलसी। अभी ये जो मैंने पूरा समझा दिया है वो मयंक सर से आप मेरा नंबर ले सकते हो, और कुछ भी आगे फ्यूचर में भी कुछ आपको क्वेरी है वगैरह है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। पर अभी के सेशन में किसी को जो भी कुछ क्वेश्चन है जो आपने मयंक भाई सर के साथ शेयर की है, तो अभी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, तो मैं आपको समझा सकता हूँ। Yeah. Yes. Okay, sir. Thank you, Manan sir. You have हम्म, delivered such a good knowledge and concept about the control panels and PLC, how it is work, what are the used in current scenario. So we will go ahead and take some time for the question now. So ओके।
Just a little reminder, please be sure type your questions into the chat box or you can direct message me. इन So right बिटवीन now आप कुछ पैनल वगैरह के फोटोग्राफ्स या फिर मेरे करंट पैनल से मेरा वर्कशॉप कुछ देखना है तो मैं आपको पेरेंट का डिटेलिंग बता सकता हूँ। yeah, okay, sure sir. Okay, right now I receive one questions from electrical यस, department. अंदर एनिमल। What यस सर। Right now I received the first question from electrical department. What are the difference between fixed PLC and modular PLC? हाँ, फिक्स पीएलसी क्या रहता है? फिक्स पीएलसी में इनपुट और आउटपुट का लिमिटेशंस रहता है कि कुछ लिमिट तक ही इनपुट और आउटपुट हम यूज कर सकते हैं, और वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रहता है। उसका साइज भी कम रहता है और कॉम्पैक्ट भी रहता है। बट मॉड्यूलर पीएलसी में क्या रहता है, उसका रेंज बहुत ही ज्यादा बड़ा रहता है कि हम जैसे अभी मैंने इनपुट आउटपुट को समझाया कि 100 इनपुट रहते हैं, 50 इनपुट रहते हैं, आउटपुट 50 रहते हैं, 100 रहते हैं। अभी मॉड्यूलर पीएलसी में उसका लिमिट 500 इनपुट, 600 इनपुट तक रहता है, 700 इनपुट तक रहता है। तो इस अगर बड़ी एप्लीकेशन है तो उसके लिए हम मॉड्यूलर पीएलसी यूज करते हैं। अभी अगर कुछ ऐसा हजार्डियस एरिया के बारे में मैंने भी बताया था कि हजार्डियस एरिया है कि क्लोज एनवायरनमेंट के लिए हमको कंट्रोल पैनल का यूज करना है, तो उसके लिए भी मॉड्यूलर पीएलसी मीन्स एचवीएसी एप्लीकेशन है। सपोज बहुत बड़ा प्लांट मीन्स वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है या फिर कोई न्यूक्लियर प्लांट है, तो ऐसे जस्ट बड़े बड़े प्लांट रहते हैं, उसके लिए हम मॉड्यूलर पीएलसी का यूज करते हैं जिसमें हमको लिमिट ज्यादा मिलती है। Oh, okay, sir. Sir, one more questions I received यस। from EC department. What is the ओके। meaning of resolutions in input-output car in PLC? सॉरी। Uh, the meaning of resolutions? Yes, sir. What is the ओके। meaning of resolutions in input-output car in PLC? रिजोल्यूशन नहीं होता। इनपुट आउटपुट के लिए कार्ड जो पीएलसी के अंदर बाय डिफॉल्ट रहता है, उसके लिए क्या करते हैं कि पीएलसी का जो इनपुट रहता है उसको हम एक रिले के थ्रू इनपुट देते हैं। जो पीएलसी में अगर कुछ फॉल्टी कंडीशन में इनपुट आता है, अगर इनपुट इनपुट जैसे आता है फील्ड से आता है, तो यहाँ पे भी कुछ शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, बाहर से जो 24 वोल्ट का इनपुट आता है उससे हम एक 24 वोल्ट का रिले चलाते हैं, और रिले का एनो कॉन्टेक्ट को यूज करके हम पीएलसी में इनपुट देते हैं। और सेम सेम चीज आउटपुट में भी करते हैं कि आउटपुट में क्या रहता है, पीएलसी से जो आउटपुट मिलता है उससे हम एक 24 वोल्ट का रिले चलाते हैं, और 24 वोल्ट का रिले चला के उसका जो पोटेंशियल फ्री एनो कॉन्टेक्ट मिलता है, तो वो एनो कॉन्टेक्ट से हम फील्ड का जो भी कॉन्टेक्टर चलाना है या फिर फील्ड का कोई मशीन चलाना है तो उसको रिले के एनो कॉन्टेक्ट से चलाते हैं। तो क्या रहता है कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में पीएलसी डैमेज ना हो और हमारा वर्क बिगड़े नहीं। अगर रिले डैमेज होता है शॉर्ट सर्किट के कारण तो रिले आर इजीली रिप्लेसेबल। Yeah, okay, sir. Okay, sir. I receive one more questions from IT department. What is यस। the communication protocol in a automation system? हाँ, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या रहता है कि अभी ये जो RJ45 रहता है, RS485 रहता है, RS232 रहता है, और अगर इसमें भी अलग अलग तरह की पिंस और वगैरह रहता है, जो जनरली जो भी सारी पीएलसी रहती है मिस डेल्टा पीएलसी रहती है, स्नाइडर पीएलसी रहती है, वो सभी RS485 पे वर्क करता है। अगर हमको पीएलसी से HMI, पीएलसी से या फिर डीसीएस सिस्टम को कनेक्ट करना है, पीएलसी से वीएफडी को कनेक्ट करना है और डेटा का कम्युनिकेशन करना है, तो RS485 इज द मोस्टली यूज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। RS232 उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, और RJ45 कम्युनिकेशन जो रहता है वो केबल रहता है, वो ओनली फॉर सीमेंस। सीमेंस सबसे ज्यादा यूज करता है उसको। तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के तीन तरह के रहते हैं, RS485, RS232 और RJ45। Okay. Okay, sir. This last question from my side, sir. I think the ओके। manufacturing is a cost-sensitive industry. Am I right? यस। So, what is the issue of cost versus value in the panel building? इजी ऑफ कॉस्ट वर्सिंग वैल्यू Yes. मीन्स आप उसका कॉस्ट कैसे कटिंग हो सकता है, कैसे कम कर सकते हो, ऐसा बोल रहे हैं ना Yes. सर? Yes, sir. ओके।
तो अभी इंडस्ट्री में क्या रहता है कि कुछ स्टैंडर्ड जो इंडियन स्टैंडर्ड ने तय किए हैं कि आईएस स्टैंडर्ड दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमको कंट्रोल पैनल बनाना रहता है। तो हम कंट्रोल पैनल में उसका गेज रहता है, तो उसके साइड के सिचुएशन के हिसाब से उसका हम गेज नक्की करते हैं, उसका वेट तय करते हैं। और उसके अंदर के जो कंपोनेंट रहता है, कंपोनेंट की भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड रहती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग, जैसे ही हम सपोज आजकल मोबाइल लेने जाए तो सैमसंग का मोबाइल रहे या एमआई का मोबाइल रहे या फिर एप्पल का मोबाइल रहे, तो फंक्शनलिटी सब में सेम है, पर उसके ब्रांड वैल्यू से उसका प्राइस तय होता है। तो उसके हिसाब से जो भी हम कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहता है। Yeah, okay, sir. It is look like we have covered all the questions now. So, Manan sir, ओके। is there any else you wanted to cover before of wrap up? नो सर, नो सर, आई हैव Okay, कवर्ड great, sir. ऑल थिंग्स। Okay, thank you, Manan sir, for an ओके। enlightening and more effective presentations on the control panels and PLC. We appreciate ओके। having this mysterious area clarified by you. Your suggestions ओके। and tips is always helpful to us in the futures. We really ओके सर। appreciate that. I have a small token of our appreciations here for you, sir. Thank you. Please accept it with our sincere thanks. We will see you next time with the different other topics. Thank you, everyone. We appreciate you being here. Thank you so much. ओके सर, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Okay, thank you, sir.